अस्सलामुअलैकुम, मैं नूर हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं वसीम हूँ। आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। हम अपने कौमी ग्राम स्वराज अभियान जम्मू कश्मीर की तरबीती प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आज का मौजू ग्राम पंचायती निजाम है। आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? खुशी की ही बात है। मेरे वालिद पंचायती राज्य का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। पंचायती राज क्या है नूर? क्या आप पंचायती राज निजाम के बारे में नहीं जानते? पंचायती राज क्या है? क्या आप पंचायती राज निजाम के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, मैं पंचायती राज निजाम के बारे में नहीं जानता हूँ। क्या आप मुझे पंचायती राज निजाम के बारे में मालूमात देंगी? हाँ, बिल्कुल। मैं न सिर्फ आपको बल्कि तमाम गांव वालों को पंचायती राज निजाम के बारे में आगाह करूंगी और ये भी बताऊंगी कि यह निजाम गांव वालों के लिए कितना अहम है। तो आप सब गौर से सुनेंगे। हमारे मुल्क में 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और तमाम इलाकों में पंचायती राज निज़ाम कायम किया गया है। पंचायती राज निज़ाम गांव की सतह पर मकामी हुकूमत का निज़ाम है। देही हिंदुस्तान का पंचायती निज़ाम जिस तरह बल्दिया और उपनगर पालिका शहरी इलाकों के जरिए चलाया जाता है, उसी तरह देही इलाकों को पंचायती राज अदारों के जरिए चलाया जाता है। कदीम ज़माने से ही हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और मुआशी जिंदगी में पंचायत का अहम मकाम रहा है। अच्छा नूर, मुझे ये बताओ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये कब और कहाँ से शुरू हुआ। पंचायती राज निज़ाम हिंदुस्तान में कदीम ज़माने से मौजूद रहा है। आज़ादी के बाद साल 1952 में मंसूबाबंदी कमीशन, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, में कम्युनिटी तरक्की प्रोग्राम और नेशनल फाइनेंस प्रोग्राम तजवीज़ किया गया। 1956 में इस मौजू पर मज़ीद मुताला के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बलवंत राय मेहता समिति का तश्कील दिया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें पंचायती निज़ाम ग्राम सतह, दरमियानी सतह, जिला सतह पर लागू करने का मशवरा दिया गया। इसका मतलब है पंचायती राज निज़ाम 3 सतहों पर काम करती है। हाँ, ग्राम की सतह पर ग्राम पंचायत, प्रखंड सतह पर प्रखंड तरक्की परिषद, जिला सतह पर जिला तरक्की परिषद।
اچھا نور، یہ بتائیں کہ ہندوستان میں اس کی شروعات کب ہوئی؟ سال 1958 میں قومی ترقی کونسل نے بلونت رائے مہتا سمیتی کی سفارشات کو قبول کیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں پہلی بار راجستھان کے ناگور ضلع میں اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ذریعے 2 اکتوبر 1959 کو پنچایتی راج نظام کی شروعات کی گئی۔ ہندوستان کے پنچایتی راج نظام میں گاؤں یا چھوٹے قصبے کی سطح پر گرام پنچایت یا گرام سبھا ہوتی ہے، جو کہ ہندوستان کی مقامی حکومت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرپنچ گرام سبھا کا منتخب کردہ اعلیٰ نمائندہ ہوتا ہے۔ پنچایتی راج نظام کیسے کام کرتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہاں بتاتی ہوں۔ گرام پنچایت کے کام اور ذمہ داریاں: پنچایت کے ترقیاتی پروگراموں اور منصوبوں کے نفاذ میں مدد کرنا، کمیونٹی فلاح و بہبود کے پروگراموں میں نقد یا رضاکارانہ مزدوری یا دونوں کی شکل میں لوگوں کی مدد کرنا، عوامی تعلیم اور خاندانی فلاح بہبود کے پروگرام میں مدد کرنا، گاؤں میں معاشرے کے تمام طبقات کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینا، مانیٹرنگ کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے مناسب کارروائی پر تبادلہ خیال اور سفارش کرنا، تو آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ پنچایتی راج نظام کے بارے میں معلومات اتنی اہم کیوں ہے؟ ہاں نور، میں سمجھ گیا۔ ہمارے گاؤں کے لیے پنچایتی راج کا نظام کتنا اہم ہے، یہ ہمارے گاؤں کی ترقی اور بااختیار بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ نہ صرف عوامی فلاح و بہبود کے لیے بلکہ بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ گاؤں کی پنچایتیں گاؤں کی صفائی، سڑکوں کی تعمیر، ڈسپنسری، روزگار جیسے انتظامات کرتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بیماریوں کی روک تھام، صنعتوں اور کاروباری اداروں کی ترقی کے لیے پروگراموں کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ اچھا ہوا نور، آپ نے مجھے اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اب میں گھر جاؤں گا اور اپنے تمام خاندان کے افراد کو بھی اس سے آگاہ کروں گا۔ اب میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا ہے نور، مجھے پنچایتی راج نظام کے بارے میں ہر چیز کو تفصیل سے جاننا ہے۔ ہاں وسیم، میں آپ کو اور پورے گاؤں والوں کو پنچایتی راج نظام کے بارے میں تفصیل سے سمجھاتی ہوں، آپ بھی غور سے سنیں گے۔ مقامی انتظامیہ: گاؤں پنچایت اور پرکھنڈ سطح پر کام کرنے والے حکومت کو مقامی گورننس کہتے ہیں، جیسے گرام سبھا، گرام پنچایت، ضلع کونسل، مقامی انتظامیہ کو آئینی درجہ، مقامی انتظامیہ کو آئینی حیثیت کا درجہ سن 1993 میں ملا۔ تہترواں اور 74واں آئینی ترمیم میں پنچایتی نظام کو آئینی درجہ دیا۔
मकामी इंतजामिया अदारों की खसूसियात। जमहूरियत की मजबूती मकामी इंतजामिया की मजबूती के जरिए हो सकती है। मकामी इंतजामिया मकामी लोगों की परेशानियों को हल करने में मददगार साबित होती है। मुयस्सर और आवाम दोस्त इंतजामिया में मकामी हुकूमत की शिरकत अहम है। मकामी इंतजामिया मकामी लोगों के जरिए चलाया जाता है, जिससे जमहूरियत में आवाम की शिरकत यकीनी बनाई जाती है। मकामी इंतजामिया में होने वाले काम से ही गांव की तरक्की की उम्मीद है। मकामी लोगों की समाजी, मुआशी और सकाफती तरक्की के लिए मकामी इंतजामिया के बंदोबस्त की जरूरत है। मकामी इंतजामिया की जरूरत जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत में लोगों की हिस्सेदारी, मकामी सतह पर परेशानियों को हल करने के लिए, इक़्तिदार की ताकत को कम करने के लिए, हिंदुस्तान में ग्राम पंचायत की शुरुआत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हिंदुस्तान के कई सूबों में ग्राम पंचायत बनाई गई। मकामी इंतजामिया के बारे में गांधी जी के ख्यालात। मुआशी और सियासी ताकत के लिए गांव की पंचायतों को आगाह करना जरूरी है। मकामी लोगों की हिस्सेदारी तरक्की के लिए जरूरी होनी चाहिए। उन्नीस सौ 89 में पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश। मकामी इंतजामिया के इदारों को आईने हैसियत देना। मकामी इंतजामिया के इदारों में इंतखाबात के इनाकाद की रिवायत। मुनासिब कामों की फहरिस्त को ठीक करना। मकामी अदारों की मदद करना। आईन में 73वें और 74वें तरमीम। आईन की 73वीं तरमीम का ताल्लुक पंचायती निजाम से जुड़ा है। आईन का 73वां तरमीम नगरपालिका की बात करता है, जो कि शहरी मकामी इंतजामिया में है।
मकामी इंतजामिया को रियासती फहरिस्त में रखा गया है। आइन में तरमीम ने 29 मज़ामीन को मकामे इंतजामिया के जिम्मे किया है। पंचायती निजाम की 3 दर्जाई कमेटी। ग्राम पंचायत, इसके दायरे में एक या एक से ज्यादा गांव होते हैं। इसका प्रधान सरपंच या मुखिया होता है। प्रखंड तरक्की परिषद, प्रखंड सतह पर बनने वाली मकामी हुकूमत को प्रखंड तरक्की परिषद कहते हैं। जिला तरक्की परिषद, इसके तहत जिले की तमाम पंचायतें आती हैं। ये मकामी हुकूमत का निजाम है जो 3 दर्जे के ढांचे में सबसे ऊपर है। पंचायती निजाम अदारों के हकूक और काम। डिस्पेंसरी और सेहत की सहूलियात देना, देहातों को अच्छा पानी फराहम करना, नालियों का इंतजाम और देखभाल, सड़कों का इंतजाम और देखभाल, सेहत और साफ सफाई का इंतजाम करना, सड़क के किनारे रोशनी का इंतजाम करना, सही तालीम का इंतजाम करना, पंचायती निजाम अदारों के हुकूक और माशी तरक्की के काम। खेती की सिंचाई और ज़रई मंसूबों का काम, देही बिजली, गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए सड़क बनाना, माशी तालीम का इंतजाम, देहातियों के लिए रिहाइश का इंतजाम, समाज के कमजोर तबके के लिए काम करना, रियासत और मरकजी योजनाओं से लोगों को आगाह करना, तिहत्तरवें और 74वें तरमीम की खासियत बताएं। पूरे मुल्क में पंचायती निजाम और अदारों की बनावट, लोगों की हिस्सेदारी के लिए मजलिस करना, पंचायत में खवातीन के लिए रिजर्वेशन देना और मकामी अदारों में खवातीन को अहमियत देना, ग्राम, ब्लॉक और जिला सतह पर पंचायतों का बुनियादी ढांचा, हर 5 साल में पंचायत के लिए इंतखाब को जरूरी बनाना, रियासती इलेक्शन कमीशन की तश्कील, पसमानदा तबके के लोगों के लिए रिजर्वेशन का हक,
हर 5 साल में रियासती पॉलिसी का कयाम। स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में पंचायती निजाम अदारों की मुआशी हालत का जायजा लिया जाता है। सरकार हर 5 साल में मुआशी मंसूबा तैयार करती है। फाइनेंस कमीशन के काम: इदारों की तफवीज करदा टैक्स टोल का तयन करना, पंचायत और नगरपालिका इदारों को मिलने वाली मदद का तयन करना, इख्तिताम। इस सत्र में आपने पंचायती निजाम के बारे में जाना। अगले सत्र में आप पंचायती निजाम के तारीख के बारे में जानेंगे। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्या हुआ वसीम, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? तो आपने मुझे मकामी हुकूमत के बारे में बताया था ना। मैं हैरान हूँ कि मकामी हुकूमत की बुनियाद कब रखी गई। ओह मेरे प्यारे दोस्त वसीम, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ नूर, मुझे बताओ पंचायती राज का निजाम कब शुरू हुआ। इस बारे में वाज़िया तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मकामी हुक्मरानी की जड़ें हिंदुस्तानी तहजीब की जड़ों से जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तानी सकाफत और तहजीब दुनिया की कदीम और अमीर तरीन सकाफत और तहजीब है। तो क्या पंचायती राज का निजाम इतना कदीम है? जी वसीम, आप जानते हैं कि वैदिक दौर के कदीम संस्कृत सहूफियों में लफ्ज पंचायतन का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है 5 अफराद का एक ग्रुप। इसी तरह ऋग्वेद में सभा, समिति और विधात का जिक्र है। यह सब मकामी सतह पर जमहूरी इदारे थे। मास्टर जी क्लास में तारीखी दौर के बारे में बता रहे थे। क्या उस दौर में भी पंचायती निजाम था? हाँ वसीम, रामायण दौर में इंतजामिया 2 हिस्सों में तकसीम थी, जिसमें नगर का मतलब पूर था और जनपद का मतलब गांव। उस दौर में सिर्फ पंचायतन के जरिए मुंतखब होने वाला शख्स वज़राए कौंसिल रुकन था। इसी तरह महाभारत के अमन का त्योहार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में मकामी हुकूमत के सबूत मिलते हैं। अच्छा वसीम, आप वस्ती जमाने के हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हैं? वस्ती हिंदुस्तानी तारीखी मकामी हुक्मरानों की दौर में तकरीबन 3 सदियों तक जारी रही। सबसे अहम 9वीं सदी के वस्त में चोल खानदान का उभरना है। हाँ, आप ठीक कहते हैं वसीम। आप जानते हैं कि इस दौर में भी मकामी सतह पर पंचों की मदद से तनाज़ात हल किए जाते थे। गांव में खुद हुकूमत के हवाले से काफी इख्तियारात थे। आप हिंदुस्तानी तारीख के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपने क्लास में जरूर अव्वल आते होंगे नूर। हा, शुक्रिया वसीम। अच्छा नूर, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए होंगे तो मकामी हुकूमत का निजाम देखकर हैरान रह गए होंगे। हाँ वसीम, लेकिन अफसोस की बात है कि बरतानिया राज्य के तहत ग्राम पंचायत का निजाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया। इंतजार करें, मैं आपको पंचायती राज और इसकी तारीख के बारे में सब कुछ बताती हूँ।
पंचायती राज निजाम क्या है? पंचायती राज निजाम हिंदुस्तान में गांव के मकामी हुकूमत का निजाम है। ये निजाम मकामी लोगों की तरक्की और उनके मसाइल से आगाह करने के लिए बनाए गए हैं। पंचायती राज निजाम गांव के इलाकों की माशी तरक्की और समाजी इंसाफ की ताकत को जाहिर करता है। पंचायती राज का तसव्वुर। हिंदुस्तान में पंचायती राज पहले से मौजूद था, लेकिन बुनियादी तौर पर पंचायती राज को 73वें और 74वें तरमीम के बाद तस्लीम किया गया। हिंदुस्तान में पार्लियामानी निजाम को 2 शक्लों में तकसीम किया गया: मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत। तिहत्तरवें और 74वें तरमीम के बाद ग्राम पंचायत तरमीम कमेटी की तश्कील की गई। कई रियासतों में ज्यादा आबादी और रकबे की वजह से देही इलाकों के मसाइल इंतजामिया तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जमहूरियत को मजबूत बनाने और देही इलाकों के मसाइल से आगाह करने के लिए गांव पंचायत निजाम तश्कील दिया गया है। पंचायती राज की तारीख। पंचायती निजाम हिंदुस्तानी शफाकत का जड़ रहा है। इस तरह गांव की पंचायतों का जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाया जाता है। मुल्क में पंचायतें कदीम जमाने से मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त उसमें किसी किस्म का रिजर्वेशन नहीं था और न ही किसी किस्म का कानूनी एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ रियासतों में पंचायतों ने रियासती सतह पर मुख्तलिफ तरीकों से काम करती थी। महात्मा गांधी जी के नुक्ताए नजर से ग्राम स्वराज का तसव्वुर। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज का तसव्वुर कदीम दौर के देही निजाम पर मबनी था। कदीम जमाने में गांव खुद कफील था। पंचायत का निजाम और बाहमी तनाजात का हल ग्राम पंचायत खुद करती थी। गांधी जी चाहते थे कि गांव की तमाम स्कीमें वो खुद बनाएं और उन पर खुद अमल दरआमद हो। गांव की अपनी खुद हुकूमत हो और गांव हर तरह से खुद कफील हो।
आजादी के बाद पंचायती राज की हैसियत। 1957 में कम्युनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस पर एक स्टडी ग्रुप श्री बलवंत राय मेहता की क़यादत में तश्कील दिया गया। इस ग्रुप ने ये नतीजा अखराज किया कि कामयाबी के हुसूल के लिए पंचायती राज निज़ाम के जरिए इख्तियारात आम लोगों को सौंपे जाएं। उन्नीस में पंचायती राज के लिए मेहता कमेटी सिफारिशात पर अमल करते हुए 3 दर्जा का पंचायती निज़ाम कायम किया गया, जिसका मकसद कौमी लोगों को मंसूबा बंद प्रोग्राम में शामिल करना था। तीन दर्जे का पंचायती निज़ाम। गांव की सतह पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत परिषद, जिला सतह पर पंचायत समिति। पंचायती निज़ाम की कामयाबी में चैलेंजेस। तरक्याती तरजीहात में तब्दीली, निज़ाम के बारे में तफहीम का फक़दान, पंचायती राज निज़ाम की यकसानियत रियासतों से इख्तियार की गई। सरकारी मुलाजिम का गैर जानिबदारी या ला ताल्लुक रवैया। इलाकाई सियासी तंजीमें पंचायत के मामलात में मुदाखलात करती है जो उनके काम और फैसलों को मुतासिर करती है। तिहत्तरवीं आईनी तरमीम क्या है? पंचायती राज की वजारत हर साल 24 अप्रैल को कौमी पंचायत राज का दिन मनाती है। 24 अप्रैल 1993 को 73वीं आईनी तरमीम एक्ट आधारे जरिए पंचायत को आईनी दर्जा दिया गया है। हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 40 ने रियासतों को पंचायत बनाने की हिदायत दी। 3 दर्जे का पंचायती राज निज़ाम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पर मुश्तमिल है। 73वें आईने तरमीम में 11वां शेड्यूल शामिल किया गया। 29 मज़ामीन की फहरिस्त तरतीब दी गई। पंचायती निज़ाम की शुरुआत कहां से हुई? जदीद हिंदुस्तान में पहली बार पंचायत राज का निज़ाम 2 अक्टूबर 1959 को उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से शुरू किया। पंचायती राज की अहमियत। इसके जरिए हुक्मरानी में माशरे के आखिरी फर्द की शिरकत को यकीनी बनाया जाता है, जिसकी वजह से दूर दराज देही इलाकों के शहरी भी जमहूरी भी तंजीमों में दिलचस्पी लेता है।
اس کے ذریعے مکمل مسئلے کو مرکزی اور ریاستی حکومتان کے درمیان تقسیم کر کے زیادہ مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پنچایتی راج نظام کے ذریعے خواتین کو کم سے کم 1/3 ریزرویشن دے کر خواتین کو بھی مین سٹریم میں شامل کیا جاتا ہے۔ پنچایتی راج کا مقصد، اس کا مقصد ملک کی تقریباً 2.5 لاکھ پنچایتوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق فراہم کر انہیں بااختیار بنانا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق گرام پنچایت مقامی ضروریات کے مطابق منصوبوں پر عمل درآمد کر سکتی ہے۔ پنچایتی راج کا مقصد دیہی علاقوں تک حکومت کی بنائی گئی اسکیموں کے فوائد پہنچانا ہے۔ پنچایتوں کا افعال، پنچایت علاقے کی ترقی کے لیے سالانہ منصوب تیار کرنا، سالانہ بجٹ تیاری، قدرتی آفت میں امدادی کام کی تکمیل، سرکاری املاک سے تجاوزات کا خاتمہ، زراعت اور باغبانی کی ترقی کے لیے منصوبے تیار کرنا، دیہی گھروں کی تعمیر، نالے اور سڑکوں کی حفاظت، پرائمری اور سیکنڈری اسکول، بالغ اور غیر رسمی تعلیم، لائبریری، ثقافتی پروگرام وغیرہ سمیت تعلیم کے انتظامات کرنا۔ پنچایتی راج کے اختیارات اور ذمہ داریاں، اس میں گرام سبھا کو مقامی سطح پر وہ اختیارات دیے گئے ہیں جو ریاستی سطح پر مقننہ کے پاس ہیں۔ 73ویں آئین ترمیم کے ذریعے بالدیاتی ادارے کو آئین بنایا گیا۔ پنچایت کے ہر سطح کے کام کا دائرہ طے کیا جائے۔ پنچایتوں کو جو بھی خدمات مہیا کرائے گئے ہیں اور جو بھی کام ان کو تفویض کیا گیا ہے ان کو مکمل کرنا پنچایت کی ذمہ داری ہے۔ مرکزی یا ریاست حکومت کے اسکیموں یا پروگراموں کو نافذ کرنے کے لیے پنچایت ایجنسیوں کا کردار ادا کرے گی۔ درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے ناشستوں کا ریزرویشن متناسب نظام کے ذریعے طے کیا جانا چاہیے۔ خواتین کے ریزرویشن 33% ناشستوں پر لاگو کیا جائے، چاہے وہ شیڈیول ہوں یا جنرل زمرہ۔ پنچایت ایکٹ کے تحت گاؤں، انٹرمیڈیٹ اور ضلعی سطح پر انتخابات کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ منصوبہ بندی اور پنچایت،
ग्राम पंचायतों को हर माली साल का खाका तैयार करना चाहिए। 3 सतहों की पंचायतें अपने मुताल्लिक इलाकों के लिए तरक्कियाती मंसूबे तैयार करें। इस तरह की स्कीमों का महूरान लोगों की तरक्की होनी चाहिए, जिनमें दर्ज फहरिस्त ज़ात काबिल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, माशी तौर पर पसमानदा अफराद और मुआशरे की ख़वातीन शामिल हों। पंचायतों के बनाए गए तरक्कियाती मंसूबों में उन तबकात को तरजीह दी जाए। ग्राम पंचायत की मुख्तलिफ कमेटियां देही तरक्की के लिए काम करती हैं। लोगों का एक ग्रुप पंचायत के लिए बना है ताकि अपना काम बगैर किसी रुकावट के करती रहें। मौजू से मुताल्लिक माहिदीन की कमेटियां तश्कील की जाती हैं। ये कमेटियां अपने अपने मौजू से मुताल्लिक काम करती हैं। ये कमेटियां ग्राम पंचायत के हमवार करने में अहम किरदार अदा करती हैं। आवामी एहतसाब और खिदमात की फराहमी देही तरक्की में मददगार है। पंचायती राज इदारे खुद मुख्तार ना हो जाएं, इसलिए उनके काम काज का वक्तन फवक्तन जायजा लिया जाए। पंचायती राज इदारों की जवाबदेही और खिदमात की फराहमी देही तरक्की में मददगार है। एहतसाब इस बात का तयन करता है कि किसी काम से वाबस्ता मुमकिन नाकामियों या तारीक़े कार को खराबियों का जिम्मेदार कौन है। मकामी हुकूमत का बुनियादी मकसद जिला में गवर्नेंस, अमन व अमान और कानूनी बंदोबस्त को बरकरार रखना भी है। अमन व अमान मकामी सतह पर एक अच्छे मुआशरे और माहौल की तश्कील का बाज़ करता है। किसी भी रियासत, शहर या इलाके में अमन कायम रखने से ही जयराम में कमी आती है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट से देही इलाके माशी तौर पर महफूज होते जा रहे हैं। गांव में अब मजदूरों की पैदावारी, सलाहियत, कारकर्दगी, माशी और समाजी नफलो हरकत और लोगों का मेरान जिंदगी बदल रहा है। मकामी हुकूमत की मदद से मरकजी हुकूमत लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर बना रही है। मकामी नुमाइंद से आमतौर पर अपने इलाके के हर मसले से वाकिफ होते हैं, इसलिए वो मकामी मसले से मुताल्लिक मुनासिब फैसले ले पाते हैं। इख्तिताम। इस सेशन में आपने पंचायती राज निजाम के बारे में सीखा। अब अगले सेशन में आप ग्राम पंचायत के निजामी काम, ढांचा, आइन के अमल के बारे में सीखेंगे। साथ ही अगले सेशन में गांव के प्रधान, नायब प्रधान के काम और वार्ड मेंबरान के इख्तिताम भी बताए जाएंगे। उम्मीद है कि आप अगले सेशन को भी गौर से सुनेंगे।
ये मुल्क हमारा है, ये गांव हमारा है, हम इन्हें आगाह करेंगे, ये काम हमारा है, हम इनकी पहचान हैं। हमारा काम उनकी पहचान बनाना है। आए अपने गांव की जिम्मेदारी उठाएं, अपने गांव का नाम बढ़ाएं। वसीम, आप मेले में जाने के लिए तैयार हो ना? क्या आप छुटकी, तेजिया, भूरी, अमन और गांव के तमाम बच्चे भी आ ही रहे होंगे? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मालूम है नूर, चुटकी और मैंने सोचा भी है कि हम खिलौने खरीदेंगे, मिठाई नहीं। चुटकी यहाँ तक के मेले में खिलौने देखकर आ गई। वहाँ कई खिलौने थे, हाथी, घोड़े, टैंक गन और सिपाही। मैं एक सिपाही को खाकी वर्दी और टोपी के साथ लूंगा। वो अपने कंधे पर बंदूक भी उठाए हुए हैं। ये मुल्क के दफा में बिल्कुल तैनात हैं। आप जानते हो, मैंने अपने वालिद से उसके लिए पैसे मांग लिए हैं। चुटकी के आते ही हम सब चलेंगे। अभी अभी उसके वालिद सरपंच काका से मिलने गए हैं, इसलिए उन्हें आने में कुछ वक्त लगेगा। हाँ, चुटकी के वालिद एक वार्ड मेंबर हैं। अभी उन्हें और सरपंच काका को कई तरह के कामों की जिम्मेदारी है। आखिरकार मेला उन सब के ताउन से मुनाकिद किया जा रहा है। आप क्या बात कर रही हैं नूर? मेले के इनकाद में सरपंच काका का क्या किरदार है? अरे बुद्धू, सरपंच काका और हमारे ग्राम पंचायत मिलकर ही इस मेले का इंतजाम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, मेला सिर्फ खिलौने के लिए है? यह मेला हमारे गांव के लिए फन, सकाफत, जानवर पालने, ज़राअत और सियाहत के नक्ता नजर से बहुत अहम है। सीधे अल्फाज में मेले का इनाकाद गाँव की पंचायतों का इंतजामी काम भी है। क्या आपने क्या कहा? गाँव की पंचायतों का इंतजामी काम? ये कैसे हो सकता है? गवर्नेंस और इंतजामी मरकजी और रियासती हुकूमतें चलाती हैं। पंचायत इंतजामी काम कैसे कर सकती है? ओह, मैं आपको बताऊंगी, गौर से सुनिए। और हाँ, आप सब भी गौर से सुने। मैं एक बहुत अहम मौजू के बारे में बात करने जा रही हूँ, इसलिए बैठ जाएं। आप इस सेशन में बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे पंचायती राज तंजीमों का ढांचा, पंचायत की तश्कील और तश्कीलात का अमल, पंचायत कमेटियां, ग्राम पंचायत की कार्रवाइयां, पंचायत की ताकतें। हाँ हाँ नूर, सब कुछ बताएगी, लेकिन इससे पहले एक बार आप सब जोर से तालियां बजाएं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जम्मू कश्मीर के तरबीती प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि ग्राम पंचायत इंतजामी काम क्यों करती है। गवर्नेंस और इंतज़ामिया को चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसे लामरकज़ियत किया जाए। मुख्तलिफ सतहों पर ताकत, हुकूक और इख्तियारात के तक़सीम से ही मुआशरे में मसावात आएगी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, लेकिन ये इदारा तभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकेगा जब उसके नुमाइंदे तमाम इंतज़ामी सरगर्मियों से आगाह होंगे। सब ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है? किसको क्या इख्तियारात मिली है? कौन किसके तहत काम करेगा, ये भी बताओ। इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमें पंचायती राज
अदारों की साख्त को समझना चाहिए। हाँ नूर, पंचायती राज की साख्त की वजाहत कर रही हैं। मैं गौर से सुन रहा हूँ, आप भी गौर से सुने। पंचायती राज इदारे जमहूरिया हिंद के तहत आते हैं। पंचायती राज से मुताल्लिक़ इख्तियारात मकामी लोगों को मकामी हुकूमत चलाने के लिए बराह रास्त रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों को दिए गए हैं। ये इख्तियारात रियासतों से परमंडल और इज़ला को दिए गए हैं। सबकी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए ये इख्तियारात ज़िलों से ताल्लुक़ा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों और वार्ड को तफवीज़ की गई है। गाँव की सतह पर पंचायती राज इदारों की साख्त। इसी तरह गाँव की सतह पर भी पंचायती राज का अपना ढांचा है। हर ग्राम सभा को वार्ड में तकसीम किया जाता है। वार्ड से मुतालिक तमाम काम वार्ड मेंबरान करते हैं। एक वार्ड में एक या एक से ज़्यादा गांव हो सकता है। ग्राम पंचायत वार्ड मेंबरान, प्रधान और उप प्रधान पर मुश्तमिल है। पंचायत को आसानी से चलाने की जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत असिस्टेंट वर्कर्स की है। पंचायती राज के ढांचे को 3 दर्जे का ढांचा भी कहा जाता है। पंचायती राज का 3 दर्जाई ढांचा। ग्राम पंचायत, ये अपने दायरे में एक या एक से ज़्यादा गांव होते हैं। इसका सरबराह सरपंच या मुखिया होता है। ज़िला तरक्की कौंसिल, प्रखंड सतह पर बनने वाली मकामी हुकूमत प्रखंड तरक्की कौंसिल कहलाती है। ज़िला तरक्कियाती कौंसिल, इसमें ज़िले की तमाम पंचायतें शामिल हैं। ये 3 दर्जे की ढांचे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का अव्वलीन दर्जा है। पंचायतों की तश्कील और उनकी मुद्दत। पंचायतों का तश्कील एक जमहूरी अमल है जिसमें लोग मकामी सतह पर बराह रास्त और बिलवास्ता अपना किरदार अदा करते हैं। पंचायतों की मुद्दत मुसलसल 5 साल होती है और इसे बीच में मुनक़ता नहीं किया जा सकता। अगर किसी वजह से ये मुद्दत मुकम्मल नहीं हो पाती है तो 6 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करा जाते हैं और नौमुंतखब इंतज़ामिया बची हुई मुद्दत पूरी करती है। हर ग्राम सभा के ग्राम पंचायत तश्कील दी जाती है। फिर ग्राम सभा के मुंतखब शुदा मेंबरान ही अपने दरमियान से प्रधान, नाइब प्रधान व वार्ड मेंबर का इंतखाब करते हैं। वार्ड मेंबरान की तादाद ग्राम सभा इलाके की आबादी के मुताबिक होता है। हर 5 साल की मुद्दत के बाद माली कमीशन मुकर्रर किया जाता है। फाइनेंस कमीशन का चुनाव मरकजी सरकार हर 5 साल पर करती है। 73वीं और 74वीं तरमीम के मुताबिक पंचायतों के तश्कील और मुद्दत की खुसूसियात। मुल्क भर में पंचायती राज इदारों का ढांचा व बनावट। आवाम की शमूलियत के लिए मजलिस फराहम करना। पंचायतों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन और मकामी इदारों में ख़वातीन की तादाद में कसीर व इजाफ़ा। गाँव में ग्राम, ब्लॉक और ज़िली सतह पर पंचायतों का क़याम। हर 5 साल की मुद्दत में पंचायती इंतखाबात को यकीनी बनाना। रियासती इंतखाबी कमीशन का क़याम। पसमानदगान के लिए रिजर्वेशन व हक़। हर 5 साल में माली कमीशन का क़याम। वाह, क्या बात है नूर, ये हुक्मरानी का बहुत मजबूत निज़ाम है। गाँव के लोगों को सिर्फ गाँव का मसला मालूम है। अगर हमारे नुमाइंदे ईमानदारी से काम करेंगे तो गाँव में कितनी तरक्की होगी। हाँ वसीम, आप बिल्कुल ठीक हो। ये सब तो ठीक है,
لیکن نور، آپ تو کہتی ہیں کہ مقامی حکومت میں ہر ایک کا کردار ہوتا ہے۔ لوکی چاچی تو اکیلی ہی رہتی ہیں، اس کا کوئی پریوار نہیں ہے۔ سخرام چاچا مالی طور پر بھی بہت غریب ہیں۔ کیا یہ لوگ بلدیاتی نظام کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے وسیم۔ ہر معاشرے میں کچھ طبقے معاشی اور سماجی طور پر محروم اور پسماندہ ہوتے ہیں۔ مساوات اور آزادی کے حق کو حقیقی معنوں میں معنی خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کو یکساں موقع ملے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنچایتی راج نظام میں مخصوص طبقات کو ریزرویشن دیا گیا ہے۔ شیڈول کاسٹ اور ٹرائبل لوگوں کے لیے گرام سبھا میں ان کی آبادی کے تناسب میں سیٹوں کا ریزرویشن۔ کل سیٹوں میں سے آدھی سیٹوں پر خواتین کو ریزرویشن، مخصوص سیٹوں میں سے بھی آدھی سیٹوں پر خواتین کو ریزرویشن۔ ترقیاتی شعبے میں پسماندہ طبقے کے لیے ان کی آبادی کے حساب سے ریزرویشن۔ ریزرویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے پسماندہ اور پسماندہ لوگ جیسے لوکی چاچی، سکرم چاچا اور وہ مقامی حکومت کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ اسی لیے معزز وزیر اعظم نریندر مودی جی کہتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کی کوشش۔ لال قلعے کی پراچیر سے آہوان کر رہا ہوں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور اب سب کا پریاس۔ اچھا نور، مجھے بتاؤ کہ گاؤں کی سطح کا انتظامی کام ہوگا، پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں میں بتاتی ہوں، غور سے سنو۔ جی وسیم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معزز وزیر اعظم نریندر مودی جی اسمارٹ گاؤں کو اسمارٹ سٹی کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف مقامی حکومت ہی گاؤں کا بدلاؤ کر سکتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نور، مقامی حکومت کی مدد سے گاؤں میں ترقی کی علامت نظر آئے گی۔ یہاں سب کچھ خوشگوار ہوگا، گاؤں میں روزگار کے نئے مواقع آئیں گے، ہر کوئی خوشی کے گیت گائیں گے۔ واہ وسیم، بہت اچھا، کمال کیا۔ ارے آپ لوگوں نے بھی اسے پسند کیا کیا؟ کیا آپ نے تالیاں نہیں بجائی؟ شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔ آپ لوگ بہت اچھی طرح سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہے تو برائے کرم اسے لکھ دے۔ تمام سوالات کے جوابات تربیتی سیشن کے اختتام پر دیے جائیں گے۔ جی ہاں، آپ یہاں سے اب تک آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ اچھی سیکھیں، یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع پنچایت نمائندوں کے عزم کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ضلع میں واقع اکھو گاؤں پینسل بنا کر پوری دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہندوستان میں زیادہ تر پینسلیں برطانیہ، جاپان، جرمنی اور چین جیسے ممالک سے آتی تھیں، لیکن آج ہندوستان پینسل بنانے میں خود کفیل ہو رہا ہے۔ گاؤں میں پینسل فریم بنانے کے لیے 10 بڑے اور چھوٹے کارخانے ہیں۔ پلوامہ کے قریب لسی پورہ صنعتی علاقے میں اس کے کئی یونٹ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے انہیں لگایا وہ بھی مقامی لوگ ہی ہیں
جو کہ اکھو گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ آج مقامی حکومت کی مدد سے 2000 سے زائد لوگ یہاں روزگار سے جڑے ہیں۔ بتا دیں کہ ملک میں پینسل کی لکڑی کی ایک بڑی تعداد اکھو گاؤں سے سپلائی کی جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو اکھو نے چین کو شکست دی ہے۔ یہاں کے گرام پنچایت زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا کام کر رہی ہے تاکہ گاؤں والوں کا کام جاری رہے اور پیداوار کبھی نہ رکے۔ واہ، اکھو گاؤں کی طرح دوسرے گاؤں کی ترقی بھی ہمارے نمائندے آرام سے ہمارے سامنے کر سکتے ہیں۔ ہاں، نہ صرف ترقی، پائیدار ترقی۔ پائیدار ترقی، یہ پائیدار ترقی کیا ہے وسیم؟ پائیدار ترقی کیا ہوتا ہے؟ پائیدار ترقی مستقبل کی نسل پر سمجھوتہ کیے بغیر موجودہ نسل کی ضروریات کی تکمیل کرنا ہی پائیدار ترقی کہلاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ قدرتی ماحولیاتی وسائل کا بھی استحصال نہیں کرتا ہے۔ جموں کشمیر کے علاقے قدرتی طور پر انتہائی کمزور ہیں۔ معدنیات، دواؤں، نباتات اور آیورویدک ماحولیاتی ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ ماحولیات کے مطابق حساس پہاڑی علاقوں میں بڑھتی ہوئی انسانی سرگرمیوں اور لاپرواہی سے ترقیاتی کام کرنے کی وجہ سے فطرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ پہاڑوں میں دراریں پڑتی ہے اور بوجھ کا توازن بگڑتا جاتا ہے۔ بجلی منصوبوں، سرنگوں اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے زوردار دھماکوں، ڈرولنگ وغیرہ سے پیدا ہونے والی کمپنی پہاڑوں اور پتھروں کے اوپر کی سطح کو ہلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے زلزلہ جیسے واقعات بڑھتا جا رہا ہے۔ بحیثیت نمائندہ ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ پائیدار ترقی کا ماڈل ہمارے علاقے میں ہونے والے تمام ترقیاتی کاموں میں اپنایا گیا ہے۔ پائیدار ترقی کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، ماحولیات کی حفاظت کرنا، آنے والی نسل پر سمجھوتہ کیے بغیر موجودہ نسل کی ضروریات کو پورا کرنا، معاشی اور سماجی ترقی کرنا۔ واہ، اس طرح ہمارے گاؤں بھی ترقی کریں گے اور ہمارے گاؤں بھی ہرے بھرے رہیں گے۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میلے کے انعقاد کے علاوہ ہماری پنچایت کیا انتظامی کام کرتی ہے؟ ہاں بابا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، بغیر جانے آپ نہیں رہیں گے، معلوم ہے ہمیں، اس لیے اب غور سے سنیں۔ پنچایت کے کام: ڈسپینسری اور صحت مراکز کا کھولنا، نالوں کا انتظام اور دیکھ بھال کرنا، سڑکوں کا انتظام اور دیکھ بھال کرنا، صاف صفائی کا انتظام کرنا، سڑک کے کنارے روشنی کا انتظام کرنا، بنیادی تعلیم کا بندوبست کرنا، آب پاشی اور زراعت منصوبوں کا نفاذ، دیہی بجلی، پیشہ ورانہ تعلیم کا انتظام، گاؤں کے لیے رہائش کا انتظام، معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے کام۔ واہ، اس طرح ہمارے گاؤں بھی ترقی کریں گے اور ہمارے گاؤں بھی ہرے بھرے رہیں گے۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میلے کے انعقاد کے علاوہ ہماری پنچایت کیا انتظامی کام کرتی ہے؟ ہاں بابا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، بغیر جانے آپ نہیں رہیں گے، معلوم ہے ہمیں، اس لیے اب غور سے سنیں۔ بہت سارے کام ہمارے گاؤں کی سربراہ کی نگرانی میں کیے جاتے ہیں، اس طرح تو انہیں اپنے لیے وقت ہی نہیں ملے گا۔
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगले माह गांव की सरबराह की बेटी का ऑपरेशन होने वाला है। भूरी काकी माँ से कह रही थी कि शायद उसे 15 से 18 दिन शहर में रहना पड़े। हाँ, मैंने भी ये बात अपनी माँ से सुनी है। जी हाँ, सब गांव का सरबराह गांव में नहीं रहेगा तो फिर इन तमाम कामों के ऑर्डर कौन देगा? क्या गांव में कोई इंतजामी काम नहीं होगा? अरे मेरे प्यारे दोस्त वसीम, वैसे भी गांव में हम तमाम काम मिलकर संभाल लेते हैं। याद रखें, पिछले माह गुड़िया दीदी की शादी में कैसे पूरा गांव मुत्तहिद था, किसी चीज की कमी नहीं थी। हम मिलकर तमाम इंतजामात का ख्याल रखा। हाँ, मुझे याद है, लेकिन हर एक के पास इंतजामी काम के लिए थोड़ी सी ताकत होती है। बाबा, पूरी बात सुनो वसीम। मकामी गवर्नेंस के निज़ाम में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर किसी वजह से गांव का सरबराह 15 या उससे ज़्यादा दिनों तक गांव से बाहर रहें तो उसकी गैर मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव और कानूनी इख्तियारात उप प्रधान के पास चला जाता है। अरे वाह, ये एक अच्छी बात है। यहाँ तक के हमारे नाइब प्रधान चाचा भी बहुत अच्छे हैं। याद रहे, गांव में मंशियात का मरकज सिर्फ उसकी तजवीज पर खोला गया था। अरे वसीम, छुटकी और आपकी तमाम दोस्त पुल पे खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, वरना सारे खिलौने फरोख्त हो जाएंगे। अरे सब लोग पुलिया पर हैं। चलो नूर, जल्दी चलो, मेले से आकर मजीद बात करते हैं। इख्तिताम। इस सेक्शन में आपने पंचायती राज की साख्त, तश्कील और अमल के बारे में सीखा है, बशमूले इंतज़ामी काम। अगले सेक्शन में आप प्रधान, नाइब प्रधान और वार्ड मेंबरान के अफ़आल के बारे में सीखेंगे। उम्मीद है कि आप तरबियती सेशन में दिलचस्पी के साथ शिरकत करेंगे। कैसी हो नूर? कल मेले में बहुत मज़ा आया ना? तुमने क्या क्या खरीदा वहाँ से? हाँ, मजा तो बहुत आया। आपने देखा ना कि सरपंच काका ने मेले का किस तरह से इंतजाम किया था। हाँ हाँ, ये तो है नूर, मेला बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। और मैंने सरपंच काका को चुटकी के वालिद से बात करते हुए भी सुना। वो कह रहे थे कि गांव में सड़कों की तामीर पर तवज्जो देनी होगी। अब हमारे गांव में पक्की सड़कें भी होंगी। जी हाँ वसीम, गांव में सड़कों की तामीर का काम भी गांव के प्रधान का होता है और इसके लिए हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने कई पंचायतों को अवार्ड भी दिए हैं। नमस्कार। आप सभी साथियों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन जिन पंचों को और पंचायतों को सम्मानित किया गया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और देश भर की पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आप वेबसाइट पर जाकर के जिनका सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड मिला है, उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। किस बात को लेकर के उनको ये सिद्धि मिली है, उनका गौरवगान करें। अरे वाह नूर, फिर क्या हमारे सरपंच काका को भी अवार्ड मिलेगा? जी हाँ, अगर हमारे गांव का प्रधान अपना काम सही तरीके से करते हैं तो इसके साथ ही गांव की तरक्की के लिए वजीर आजम ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें मुल्क का कोई भी शहरी अपना अकाउंट बना सकता है
और गांव की तरक्की के कामों से मुताल्लिक मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। और हम भी इस पोर्टल पर पंचायती सेक्रेटरी और पंच के बारे में तमाम तफसीलात भी इस पोर्टल पर देख सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म ने गाँव को डिजिटल बनाने के लिए स्वामित्व स्कीम की भी शुरुआत किया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। हाँ, आपने सही कहा वसीम, लेकिन हमें खुद भी ग्राम पंचायत को मजबूत करना होगा और उनके कामों में ताउन करना होगा। जी हाँ, मैं अपने गाँव की तरक्की के लिए हर किस्म का काम करूँगा। सिर्फ वसीम ही नहीं, आप सब गांव वालों को भी अपने गांव की तरक्की के लिए ताउन करना होगा और मैं जानती हूं कि आप लोग जरूर अपना ताउन देंगे। अच्छा नूर, ये तो बताओ कि गांव के प्रधान के कौन कौन से काम होते हैं? हमें पता चलेगा तभी तो ताउन करेंगे। देखो, सरपंच गांव का मुखिया होता है। इस गांव के सरबराह की हैसियत से गांव की बेहतरी के लिए फैसले करने होते हैं। बुनियादी तौर पर सरपंच मुंदरजा झेल काम अंजाम देते हैं, जैसे सरपंच के काम: गांव में सड़कों का देखभाल करना, जानवरों के पालन को फ़रोग़ देना, आबपाशी की सहूलियात को फ़राहम करना, शमशान व कब्रिस्तान का देखभाल करना, प्राइमरी तालीम का इंतज़ाम करना, खेल के मैदान व खेल को फ़रोग़ देना, स्वेच्छा मुहिम को फ़रोग़ देना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम फ़राहम करना, आंगनवाड़ी को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करना, सरकार की मंसूबों से आगाह व प्रोग्रामों का इंतज़ाम करना। पंचायती राज एक्ट 1992 के बाद सरपंच के ओहदे की अहमियत और भी बढ़ गई है। मरकजी और रियासती हुकूमत पंचायतों के जरिए गाँव की तरक्की की तमाम स्कीमें चलाती हैं। आप ये भी जानते होंगे कि मौजूदा वक्त में हर साल लाखों रुपए गाँव की फंड में पंचायतों की तरक्की के लिए आते हैं। उसके लिए आइन के आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज निज़ाम में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की तश्कील का इंतज़ाम किया गया है। अरे नूर, अगर ग्राम प्रधान के काम सरपंच काका ईमानदारी से करेंगे तो हमारा गांव बहुत तेजी से तरक्की कर लेगा। हाँ वसीम, अगर हमारे सरपंच काका इसी तरह काम करते रहेंगे तो हम अपने गांव के साथ साथ हमारी भी तरक्की होगी। आप ठीक कह रही हैं नूर। एक दिन फातिमा बता रही थी कि सरपंच काका को कई इख्तियारात भी मिल गए हैं। क्या आप जानते हैं वो ताकतें क्या हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे ये बताओ कि सरपंच काका के पास क्या क्या इख्तियारात हैं? मैं बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि गांव के सरबराह का किरदार इतना अहम क्यों है और इनका इंतखाब किस तरह से होता है। हिंदुस्तान के पंचायती राज के निज़ाम में एक गांव या छोटे कस्बे की सतह की ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो कि हिंदुस्तान में मकामी हुकूमत का अहम अज़ू है। सरपंच ग्राम सभा का आला तरीन मुंतखब नुमाइंदा होता है। गांव के सरबराह का इंतखाब: प्रधान का इंतखाब ग्राम सभा के अरकान बराह रास्त इंतखाबी निज़ाम के ज़रिए करते हैं। अगर सरबराह का इंतखाब पंचायत के आम इंतखाब में नहीं किया जाता और पंचायत के लिए 2/3 से कम अरकान मुंतखब किए जाते हैं तो उसमें हुकूमत की हिदायत एक इंतज़ामी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसकी मेंबरशिप नंबर का फ़ैसला हुकूमत करेगी। उसके साथ ही हुकूमत एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी मुकर्रर कर सकती है। इतना ही नहीं, पंचायती इंतखाबात से पहले रियासती इलेक्शन कमीशन गाँव की आबादी और रजिस्टर सिस्टम के नशिस्तों का तयन करता है। ज़्यादातर रियासतों में पंचायती राज SC, ST, OBC तनासुब की बुनियाद पर एक्ट के तहत ख़वातीन के लिए नशिस्तें मखसूस हैं।
ग्राम प्रधान की गांव में हिस्सेदारी। बुनियादी तौर पर गांव का तरक्की करना, सड़कों का तामीरी काम व नाली का इंतज़ाम करना, जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतज़ाम करना, किसानों की फसलों की आबपाशी के लिए सरकारी ट्यूबवेल का इंतज़ाम करना, गांव पंचायत के लिए अवामी जगह जैसे मंदिर, मस्जिद वगैरह पर लाइट का इंतज़ाम करना। इतना ही नहीं बल्कि ग्राम प्रधान के तहत जिम्मेदार भी होना पड़ता है। उसके अलावा भी ग्राम प्रधान के अलग काम हैं, जैसे ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उन बैठकों की सदारत करना, ग्राम पंचायत की बैठकों का इंतजाम करना और सदारत करना, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के रेख रेखाओं। गांव का प्रधान इत्तेहाद बनाए रखेगा। सरकार के जरिए चलाई जा रही अलग अलग मंसूबों की जानकारी गांव को फराहम करेगा। पंचायत की आमदनी और अखराजात की तस्दीक। गांव सिक्योरिटी की हाजिरी का तस्दीक करेगा। कवायद के तहत पंचायत रिकॉर्ड की कापियां ग्राम सभा के अरकान को दस्तयाब कराना और रिकॉर्ड का मुआयना करवाना। मरकजी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम करवाना। ग्राम पंचायत माली और इंतज़ामी काम का जिम्मेदार होगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरे वालिद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ? मुझे भी इख्तियारात हासिल करने हैं, फिर मैं भी गांव की तरक्की के लिए काम करूँगा। नहीं नहीं वसीम, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन लड़ने का एक अमल है, इसके लिए दर्जे झेल काबिलियत का होना जरूरी है। सरपंच के इंतखाब के लिए अहलियत। सरपंच पद के उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर फहरिस्त में होना ज़रूरी है। उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। वो रियासती मुक़न्नना के ज़रिए बनाए गए कानून के तहत पंचायती मुंतखब होने की अहल हो। सरकारी मुलाजिम सरपंच वार्ड पंचायत का इंतखाब नहीं लड़ सकता है। सरपंच बनने के लिए कई रियासत में 8वीं पास होना ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत से रियासतों में नहीं है। नहीं, अब मुझे सरपंच के इख्तियारात के बारे में बताओ ना। अब मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे रुका नहीं जा रहा। हाँ हाँ बताती हूँ, गौर से सुनो और आप लोग भी गौर से सुनिए। ग्राम प्रधान की ताकत। सरपंच को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और सदारती करने की ताकत मिली है। ग्राम पंचायत की कार्यकार वसूल करते हैं। ग्राम पंचायत के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन के कामों पर भी सरपंच को इंतज़ामी निगरानी और कंट्रोल इस्तेनाक करने का हक है। आपको मालूम है वसीम, इतना ही नहीं, ऐसी कई जिम्मेदारियां भी ग्राम प्रधान को दी जाती हैं, जिसके पूरा न होने पर सरपंच काका की शिकायत भी हो सकती है। हमारे सरपंच चाचा की शिकायत होगी? नहीं नहीं, हम अपने सरपंच चाचा के बारे में शिकायत नहीं करेंगे। अरे बुद्धू, पहले पूरी बात तो सुनो। अच्छा। सरपंच भी पंचायत राज एक्ट 1992 के मुताबिक ग्राम सभा की मीटिंग मुनक्किद करने का पाबंद है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर ग्राम सभा की तरफ से आला हुकाम को शिकायत की जा सकती है। मीटिंग्स का एहतमाम करना सरपंच की लाजमी जिम्मेदारी है। सरपंच को गांव में हमाजिहत तरक्की के लिए बहुत से इक़दामात उठाएं। पर हमारे सरपंच चाचा सभी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रहे हैं। गांव के सरपंच की जिम्मेदारियां। गांव का मुखिया होने के नाते सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की भी सदारत करता है। हर साल ग्राम सभा की कम से कम 4 मीटिंगें करने की सरपंच पर ज़रूरी है।
سرپنچ کو چاہیے کہ گاؤں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کرنی چاہیے۔ سرپنچ کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ گرام سبھا میں دی گئی تجاویز پر ترجیحی بنیادوں پر بات کی جاتی ہے۔ گرام سبھا کی بیٹھک میں سبھی لوگوں کی حصہ داری ضرور ہونا چاہیے۔ گرام سبھا کی بیٹھک میں سبھی لوگوں کی، خاص کر SC/ST پسماندہ طبقے اور خواتین کی حصہ داری ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سبھی کو اپنی شکایتوں کو درج کرنے اور گرام سبھا میں تجاویز دینے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے وسیم، ابھی کچھ دن پہلے سرپنچ کاکا نے حکومت کی تمام اسکیموں سے آگاہ کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس بلائی تھی۔ اجلاس بلانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں نور، تھوڑا مجھے یاد ہے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ گاؤں کے لیے کام کرنا گاؤں کے سربراہ کا بنیادی کام ہے۔ ہاں وسیم، نہ صرف گاؤں کے لیے کام کرنا بلکہ گاؤں کے سربراہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ تمام سرکاری اسکیموں کے فوائد گاؤں کے لوگوں تک پہنچانا بھی ان کا کام ہوتا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ سرپنچ کاکا اکیلے اتنے کام کیسے سنبھال پاتے ہوں گے نور؟ انہیں بھی تو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہوگی نا؟ جی بالکل درست، سرپنچ کاکا کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بہت سے ممبران کو جوڑ کر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ کمیٹی کی تشکیل بہت سے ممبران اس میں شامل ہوتے ہوں گے نا نور؟ اچھا نور، مجھے یہ بتائیں کہ گرام پنچایت میں ممبر کیسے منتخب ہوتے ہیں؟ پنچایت ممبران کو ان کے علاقے کی آبادی کے مطابق منتخب کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں تقریباً 2.5 لاکھ گرام پنچایتیں ہیں، جن کے تحت تقریباً 6 لاکھ گاؤں آتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں پنچایتی انتخابات کروا کر مقامی حکومت قائم کرنے کا نظام موجود ہے۔ گرام پنچایت آبادی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ ان گرام پنچایتوں کے لیے ہر ریاست میں الگ الگ آبادی مقرر کی گئی ہے۔ 500 تک کی آبادی پر 5 رکن، 501 سے 1000 تک کی آبادی پر 7 رکن، 1001 سے 2000 تک کی آبادی پر 9 رکن، 2001 سے 3000 تک کی آبادی پر 11 رکن، 3001 سے 5000 تک کی آبادی پر 13 رکن، 5001 سے زیادہ کی آبادی پر 15 رکن۔ 3 درجے کے پنچایتی نظام کی پہلی اکائی گرام پنچایت ہے، جو ایک پردھان اور کچھ ارکان پر مشتمل ہے۔ گرام پنچایت کے ارکان کی تعداد پنچایت کے علاقے کی آبادی کے مطابق ہوتی ہے۔ پنچایتی راج نظام میں سرپنچ کے بعد اب سرپنچ کا عہدہ بہت اہم ہے، جن کا عہدہ سرپنچ کاکا کے عہدے کے بعد آتا ہے، لیکن یہ عہدہ تمام ریاستوں میں موجود نہیں ہے۔ کئی ریاستوں میں ڈپٹی سرپنچ کے عہدے کا کام کوئی انتظام نہیں ہے، صرف چند ریاستوں میں ہی جہاں ایک نائب سرپنچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گرام پنچایت میں نائب سرپنچ سرپنچ کے معاون کے طور پر کام کرتا ہے۔ سرپنچ کے غیر موجودگی میں یا کسی حادثاتی وجوہات کے بنا پر سرپنچ کا عہدہ خالی رہتا ہے۔ صرف نائب سرپنچ سرپنچ کے فرائض انجام دیتا ہے۔ سرپنچ کے عدم موجودگی میں یا پنچایت میں عہدہ خالی ہو جاتا ہے تو نائب سرپنچ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں وسیم، بالکل ٹھیک کہا، آپ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ مجھے بتائیں۔ خاموش، گاؤں کے تمام لوگ آپ جیسے بدھو تھوڑی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ روبینہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے والد نائب سربراہ ہیں اور اس کے والد کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں۔ جی وسیم، روبینہ نے آپ کو ٹھیک کہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی سرپنچ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں،
जैसा कि सरपंच मुंतखब किया जाता है वैसा ही नायब सरपंच भी मुंतखब किया जाता है। नहीं, गलत कह रहे हैं। सरपंच का इंतखाब आम पंचायत इलेक्शन से मुख्तलिफ है। सिर्फ मुंतखब वार्ड पंच इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सरपंच का इंतखाब होते ही नायब सरपंच के इंतखाब का अमल शुरू हो जाता है। ये इलेक्शन रियासती इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा प्रेसिडिंग ऑफिसर के ज़रिए भी कराया जाता है। उसके लिए सदारत ऑफिसर सरपंच के इंतखाब के 15 दिन बाद उप सरपंच का इंतखाब करवा सकता है। नायब सरपंच के इंतखाब के लिए रिजर्वेशन का भी उसूल है। नायब सरपंच के लिए रिजर्वेशन का निज़ाम सरपंच के रिजर्वेशन सिस्टम पर मुनहसर है। अगर ग्राम पंचायत में गैर महफूज तबक़ी का सरपंच है तो पंचायत में नायब सरपंच का ओहदा मखसूस ज़ुमरे से होगा। ये दर्ज फहरिस्त ज़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल या पसमानदा तबक़ात में से कोई भी हो सकता है। वार्ड मेंबरान यानी वार्ड का नायब सरपंच के इंतखाब में हिस्सा लेता है। ये इंतखाबी अमल एक दिन में मुकम्मल होता है। जिस वार्ड पंच को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसे नायब सरपंच करार दिया जाता है। अब समझे कुछ बुद्धू? हाँ, समझ गया नूर। इसका मतलब नायब पंच के ओहदे के लिए वही अहलियत होते हैं जो सरपंच के ओहदे के लिए होती है और उनके इंतखाब की तरह उनके अफ़ाल और इख्तियारात भी मुख्तलिफ होती हैं। अरे वाह वसीम, आप तो वाकई सब कुछ समझ गए हैं। चलो अपने लिए और सभी गांव वालों के लिए तालियां बजाएं। जी हाँ, आप लोगों की शराकत हमारे लिए भी बहुत अहम है। हाँ, और मैं ये भी बता दूं कि सरपंचों की तरह पंचायती राज एक्ट में भी ऊपर के सरपंचों को मुख्तलिफ इख्तियारात दिए गए हैं। अगर किसी वजह से सरपंच को हटाया जाए या बर्खास्त किया जाए या कोई नाखुशी गवार वाकया पेश आता है तो सरपंच की बजाय नायब सरपंच निगरान सरपंच की जिम्मेदारियां अदा करता है, जिसके लिए इनके पास इख्तियारात भी हैं। नायब प्रधान के काम और ताकत। अगर किसी वजह से गांव का सरबराह गांव से बाहर जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव और कानूनी इख्तियारात नायब सदर के पास होता है। सरपंच के सामान ही उन्हें यह हक दिया जाता है कि ग्राम सभा और बैठक में नायब सरपंच ही फैसला ले सकता है, लेकिन उस दौरान जो जिम्मेदारी नायब सरपंच को नहीं दी जाती है, सरपंच के दस्तखत से ही लेन देन हो सकता है। नायब सरपंच को मुख्तलिफ कमेटियों में कई ओहदे दिए गए हैं, जैसे ग्राम पंचायतों में किए जाने वाले कामों की सही निगरानी करने के काबिल होना। आम तौर पर उप सरपंच तमाम रियासतों के ग्राम पंचायतों में तालीमी निज़ाम और समाजी बहबूद कमेटी का साबिक होता है। सदर की गैर मौजूदगी, मुअतली या बरतरफी में नायब सदर ऐसी तमाम फ़राइज़ अंजाम देंगे जो एक्ट और कवायद के ज़रिए सदर को तफवीज़ किए गए हैं। ठीक इसी तरह तमाम इलाकों को जोड़ने के लिए वार्ड मेंबरान का तकर्रुर किया जाता है। वार्ड मेंबर वो क्यों भला? देखो वसीम, अगर पंचायती राज निज़ाम की सबसे छोटी इकाई है, इंतज़ामी सहूलियत के लिए ग्राम पंचायत छोटे ब्लॉक्स में तकसीम है, जिसे वार्ड कहा जाता है। ओह नूर, जब हमारे पास गांवों का सरबराह और नायब सरबराह है तो फिर हमें वार्ड असेंबली की ज़रूरत क्यों है? हम बराए रास्त सरपंच काका से बात करेंगे। नहीं वसीम, हमें वार्ड सभा की जरूरत है। वार्ड सभा ग्राम पंचायत का एक बहुत अहम हिस्सा है। ग्राम पंचायत के हर वार्ड में वार्ड सभा तकसीम दी जाती है। वार्ड पंच होने की वजह से लोगों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाते हैं। अरे लेकिन लोग अपने मसाइल गांव के सरबराह से भी हल करवा सकते हैं।
मुनिया काकी भी सरपंच काका के पास ही जाती हैं। देखो वसीम, गांव में बहुत से इलाकों में लोग सरपंच तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से उनके मसाइल नहीं उठ पाते हैं। गांव की तरक्की में वार्ड पंच की शराकत अहम है, क्योंकि सबसे पहले वार्ड का रिहायशी किसी भी मसाइल या ग्राम पंचायत के बारे में मालूमात के लिए वार्ड पंच से राब्ता करता है। हम जानते हैं कि वार्ड सभा पंचायती राज की इंतज़ामिया सबसे छोटी इकाई है, पर पंचायत अलग अलग वार्ड में बटे हुए हैं। हर वार्ड का एक मुतय्यन इलाका होता है, जिससे कि सभी इलाके के लोगों के मसाइल को सुना जा सके और उसका हल तुरंत निकाला जा सके। ठीक है, फिर इसका इंतखाब गाँव के सरबराह करते हैं। नहीं, वार्ड सभा भी ग्राम सभा की तरह एक मुस्तकिल इदारा है। 200 से 500 की आबादी के लिए एक वार्ड तश्कील दिया गया। उन वार्ड सभा के नुमाइंदे इसी वार्ड के वोटर के जरिए मुंतखब होते हैं। इसका मतलब है कि वार्ड पंच का किरदार बहुत अहम है और उनके पास वही इख्तियारात और जिम्मेदारियां होगी जो गाँव के सरबराह और उप प्रधान के पास हैं। हाँ वसीम, ग्राम प्रधान की तरह पंचायती राज एक्ट के मुताबिक वार्ड पंच के सभी इख्तियारात और जिम्मेदारियां हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आप गौर से सुने और आप लोग भी गौर से सुने। वार्ड मेंबर के काम और ताकत। वार्ड के तहत तरक्याती प्रोग्रामों के लिए तजावीज़ तैयार करना। वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत की मीटिंग में अफ़ाल तौर पर शिरकत करेगा और अपने हलके के इलाके के मसाइल को इजलास में रखेगा। मुकर्ररा पैरामीटर्स की बुनियाद पर वार्ड में स्कीम के फ़ायदा उठाने वालों की शनाख्त करना। अपने वार्ड के लोगों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात देना। मुख्तलिफ सरकारी फलाह व बहबूद जैसे पेंशन और ग्रांट हासिल करना। स्कीमों के फ़वाइद हासिल करने वाले अफराद की अहलियत की तस्दीक। वार्ड के तहत तरक्याती प्रोग्रामों के लिए तजावीज़ तैयार करना। ग्राम पंचायत की स्कीमें जैसे स्ट्रीट लाइट्स, पानी के नल, अवामी बैतुल खुला और दिगर अवामी अफादियत के लिए जगह तजवीज़ करना। वार्ड सभा के इलाके में सफाई के इंतज़ामात में ग्राम पंचायतों के मुलाजिमीन की मदद करना और फजला हटाने के लिए रज़ाकाराना खिदमात। वार्ड में ख़वानदगी के प्रोग्रामों को फ़रोग़ देना। वार्ड सभा के इलाके में मुख्तलिफ लोग गिरोहों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देना। समझ गए ना वसीम, ग्राम प्रधान और वार्ड सभा के नायब सरबराह की जरूरत क्यों है? हाँ, मैं सब कुछ समझ गया नूर। इतना ही नहीं, मैं गाँव के सरबराह, नाइब सरबराह और वार्ड के इख्तियारात से भी अच्छी तरह वाकिफ हो गया हूँ। और न सिर्फ मैं बल्कि गांव वाले भी सब कुछ समझ गए। जी हाँ, हमारे गांव के लोग बहुत होशियार हैं, वह भी सब कुछ जानते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल है तो जरूर पूछें। जब मन में लिया हो ठान, तब मंजिल होती है आसान। जाए अगर कोई साथी, हिम्मत की डगर है काफी। है गांव में अपना राज, अब पूरे होंगे सारे काज। ग्राम पंचायत का हम लेंगे ज्ञान, अपने गांव का हम बढ़ाएंगे अभिमान।